Now, in the last class, we talked about the structures of the blood vessels, and we talked about कि भाई हमारे पास जो आर्टरीज होती हैं उनके टिश्यूज क्या होते हैं, व्हाट आर द वेन्स के अंदर कौन से टिश्यूज होते हैं हमारे पास, और what we have, or capillaries, how they are existing as, or how they are this, how you know are they not organs but why are they tissues. ठीक है. अच्छा, फिर हम लोग अगेन रिमेंबर अबाउट द कैपिलरीज इज दैट भाई हमारे पास जो कैपिलरीज होती है ना, दे आर वन सेल थिक एंड व्हाट आर दे आर पोरस. पोरस का मतलब क्या हुआ कि भाई दे वुड हैव, लेट्स से पोर्स, सो दैट सब्सटेंसेस वुड आइदर लीक in or either can leak out. ठीक है. Mustafa, So I have class. this one thing that you have to know. Now, फिर हम लोगों ने आखिरी चीज जो करी थी, वी टॉक्ट अबाउट द लेआउट ऑफ द ब्लड वेसल्स. हम लोगों ने लेआउट ऑफ द ब्लड वेसल में क्या कहा था कि हमारे पास वी हैव आर्टरीज राइट हियर, and in these arteries the arteries shorten down to form smaller arteries called as arterioles. And then what we have are the capillaries, the arterioles further shorten down forming the capillaries. ठीक है. अच्छा, फिर ये जो कैपिलरीज हमारे पास होती हैं, ये जो हमारे पास कैपिलरीज होती हैं, they enlarge to form the venules, and these venules they finally form the vein. ठीक है. अच्छा, एक और चीज हमें क्या याद रखनी है कि ये जो कैप ब्लड वेसल्स होती है ना, ये हवा में नहीं होती है, राइट. They would be again placed on what respiring tissues. So these circles that I'm drawing right here, they represent the cells of the body that are making up what, that are making up the tissues, that are making up the tissues. ठीक है. So ये स्पेसेस एम्प्टी नहीं होंगे, इनके अंदर हमारे पास टिश्यूज होंगे. ठीक है. So this one thing that we have to remember. We won't be talking about the blood vessels अभी फिलहाल थोड़ी थोड़ी देर तक. Until we would talk about until we would talk about the exchange. ठीक है. So today what's on our list is exchange of nutrients. Along before the exchange of nutrition, we'll be talking about the blood. ठीक है. So now let's start off with that. तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, अभी तक हम लोगों ने किसके बारे में बात करी. We talked about two organs of the circulatory system, the arteries and the veins, and we talked about one particular type of tissue, that are the capillaries. अब मेरे पास दूसरा वाला टिश्यू होता है ना, वो it's blood itself. Blood, since it's made up of many cells, this is what we call as a connective tissue. Connective tissue का मतलब क्या हुआ कि भाई connective tissue is anything that connects one part of the body to the other. कि भाई हमारे पास blood जो है वो तो सारी body को connect कर रहा है ना. It's connecting all of the body. Hence, जो हमारे पास blood होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, we consider it to be the connective tissue. ठीक है जी. Right. अच्छा जी. Now, अब हमारे पास ब्लड के कंपोनेंट्स कितने हैं. हम कहते हैं भाई अगर हम लोग ब्लड को डिवाइड करेंगे ना, सो वी कैन डिवाइड ब्लड इनटू टू डिफरेंट कंपोनेंट्स. हमारे पास सबसे पहला जो ब्लड का कंपोनेंट आता है वो दैट इज द प्लाज्मा. सो इफ वी टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, हमारे पास ब्लड के दो कंपोनेंट्स आते हैं. सबसे पहले हमारे पास जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी द प्लाज्मा. नाउ what is plasma? Plasma is the fluid part of the blood. It's a fluid part of the blood. And since it's a fluid part of the blood, it is about 95% what? It's 95% what? It's 95% water. हम आ रहा है इतना हम बात करेंगे उसके बाद. 95% water. और जो 5% होता है इसके अंदर वो क्या है? These are the dissolved substances. जो भी चीज हमारे पास प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होगी वो हम लोग कह देंगे भाई दैट्स अ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस. ठीक है. अब ये हमारे पास डिसॉल्व्ड सब्सटेंस होते क्या क्या है, व्हाट आर दीज डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस. इन डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. we're going to divide these dissolved substances, this 5% of the dissolved substances, into two categories. हम कहेंगे जो हमारे पास dissolved substances हैं, they can either be small dissolved substances, they can either be large dissolved substances.
Now, why are we dividing them based on their size? Is because we want to know कि भाई कौन से वाले substances कैपिलरी से बाहर जाएंगे, कौन से वाले substances कैपिलरी को क्रॉस नहीं कर सकते. We already know that हमारे पास जो capillaries हैं, they are porous, right? They are what? They are porous. They have pores inside of them. लेकिन अब कोई वाली बात है ना कि for example, if I have some grill attached, now through the grill mosquitoes may move through, but an elephant cannot. Why? Because the elephant won't be able to fit in. Similarly, प्लाज्मा से कौन, सॉरी, कैपिलरी से कौन पास कर सकता है? वो सब्सटेंसेस जो प्लाज्मा के अंदर हैं और उनका साइज क्या है? देयर साइज इज स्मॉल. दिस इंक्लूड्स वाटर. सबसे पहले वाटर भी स्मॉलर, इट कैन लीक आउट. बिसाइड्स वाटर, द स्मॉल सब्सटेंसेस आर न्यूट्रिएंट्स. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स. ऑलराइट. उसके अलावा ions, mineral ions, sodium, potassium, calcium, right? Or hormones. Hormones are also small enough to pass through the pores of the capillary. Hormones के अलावा और क्या पास करेगा? Waste products such as urea, such as CO2. ठीक है. CO2 रेड ब्लड सेल्स में भी डिसॉल्व होती है, रेड ब्लड सेल भी कैरी करते हैं, और CO2 को ब्लड प्लाज्मा भी मूव ट्रांसपोर्ट करवाता है. ठीक है जी. अच्छा, लार्ज सब्सटेंसेस क्या होंगे हमारे पास? द सेल्स, द ब्लड सेल्स अगर हम कहें तो. ठीक है. द रेड ब्लड सेल्स, द प्लेटलेट्स. ठीक है. वाइट ब्लड सेल्स, कुछ वाइट ब्लड सेल्स भी पास कर सकते हैं, सारे पास नहीं करेंगे थ्रू द कैपिलरी पोर्स. ठीक है. ब्लड सेल्स के अलावा हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं विच आर स्पेसिफिकली फाउंड इन द प्लाज्मा, सो वी कॉल देम प्लाज्मा प्रोटीन्स, राइट? अच्छा, प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? देयर आर 3 प्लाज्मा प्रोटीन्स. नाम याद कर सकते हो तो कर लो, नहीं करना तो नहीं करो. ठीक है. आई एम जस्ट गिविंग देम. एल्ब्यूमिन. Albumin is the same protein that is found in the egg whites. It's also present in my blood. It's one of those proteins जो मेरे blood का water potential maintain कर रहा है. दूसरे प्रोटीन्स हमारे पास क्लॉटिंग के प्रोटीन्स आ जाते हैं. फॉर एग्जांपल फिब्रिनोजन, which help to clot my blood whenever there is an injury. और फिर हमारे पास दूसरे प्रोटीन्स आते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लोब्यूलिन्स. ग्लोब्यूलिन्स are practically एंटीबॉडीज. ठीक है. तो एक चीज तो हम ये हो गई कि भाई हमारे पास व्हाट कैन पास थ्रू द कैपिलरी पोर्स एंड व्हाट कैन नॉट पास थ्रू द कैपिलरी पोर्स. तो प्लाज्मा जो हमारे पास ब्लड का पहला कंपोनेंट है वो प्लाज्मा है, जिसके अंदर बाकी सारी चीजें डिसॉल्व हुई हुई हैं. ब्लड का जो दूसरा कंपोनेंट है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास सेल्स है, सेल्यूलर कंपोनेंट है. कौन कौन से सेल्स हैं हमारे पास? वी हैव द वाइट ब्लड सेल्स, जिनके बारे में हम लोग व्हेन वी टॉक अबाउट इम्यूनिटी हम लोग बात करेंगे. वी हैव platelets, but the cell that is of concern right now are the red blood cells, are the red blood cells. ठीक है. Very good. So we're going to talk about red blood cells in detail. अब रेड ब्लड सेल्स हमारे पास जो हैं, इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? हम कहते हैं भाई रेड ब्लड सेल्स, their function is to transport oxygen and carbon dioxide. ठीक है. अबाउट जितनी भी अबाउट 95% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड. बच्चे, प्लेटलेट्स आर फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल्स, सो दे प्रैक्टिकली सेल्स. अच्छा, वाटर प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स आर फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल्स दैट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. मैं समझाऊंगा इसको. ठीक है. अच्छा, दे ट्रांसपोर्ट वो ऑक्सीजन and carbon dioxide through a protein, through a protein called hemoglobin, through a protein called hemoglobin. ठीक है. अच्छा जी. अभी हीमोग्लोबिन क्या होता है? बेटा, हीमोग्लोबिन इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऑक्सीजन एक्सेप्टर, ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है.
ठीक है। अब लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट हीमोग्लोबिन, तो हमने क्या देखा कि भाई हमारे पास a single molecule of hemoglobin is able to combine with how many molecules of oxygen? Four molecules of oxygen. अच्छा मुझे एक बात ये बताओ, पहले मुझे एक बात ये बताओ कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं? How many atoms of oxygen do I have in a single molecule of oxygen? Two. Very good, very good. So up now, if there are two atoms of oxygen in a single molecule, four molecules of oxygen में कितने atoms हो जाएंगे? एट, वेरी गुड। सो कभी कभार एग्जामिनर तुम लोगों को ना एमसीक्यूज में कंफ्यूज करेगा, तो एमसीक्यूज पढ़ लीजिएगा उसको कि what is the examiner actually asking for. Sometimes you're going to ask for कि भाई how many atoms of oxygen binds with hemoglobin. कभी कभार पूछेगा how many molecules of oxygen bind with hemoglobin. है, it gives us a compound called as oxyhemoglobin. अब अगर हम लोग इसी केमिकल इक्वेशन बनाएं, तो हम क्या देखते हैं भाई, हीमोग्लोबिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज एच बी. HP combines with four molecules of oxygen to give you HbO8. So ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मूला क्या है? HbO8. ठीक है। अच्छा होता क्या है, जब भी अब फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास एक रेड ब्लड सेल फॉर एग्जांपल इस तरफ है, ठीक है, आई हैव अ रेड ब्लड सेल दैट इज राइट हियर. अब ये रेड ब्लड सेल इफ इट्स कैरिंग ऑक्सीजन, तो ये रुकेगा थोड़ी, इट्स नॉट गोइंग टू स्टॉप. वो ऐसा नहीं करेगा, ऐसे स्टॉप करेगा, एक्सचेंज करवाएगा, ऑक्सीजन सेल्स को देगा, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, फिर आगे बढ़ेगा. ऐसा नहीं होता. एज द ब्लड इज फ्लोइंग, जितनी देर के अंदर ये रेड ब्लड सेल एक टिश्यू के पास से गुजर रहा है ना, एट वट एवर स्पीड, राइट, इसको वट एवर ऑक्सीजन इट हैज टू डिफ्यूज इट इनसाइड द सेल्स, एंड वट एवर कार्बन डाइऑक्साइड द सेल्स आर प्रोड्यूसिंग इट हैज टू टेक इट बैक, राइट. तो रेड ब्लड सेल की कुछ अडेप्टेशंस होती हैं, रेड ब्लड सेल्स की कुछ अडेप्टेशंस होती हैं which allow them to carry out a faster rate of diffusion. हाँ जी. ऑल राइट. यप, यप. हाँ नहीं बच्चा, ओनली विथ फोर मॉलिक्यूल्स. हाँ उससे कम भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई, फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई गो टू हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ऑक्सीजन कम होता है, तो वहाँ दो से कर लेगा, तीन से कर लेगा पर मॉलिक्यूल, मैक्सिमम फोर से करेगा. यूजुअली फोर से ही करता है एक तरीके से करना. अच्छा अब इसको देखो, हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद CO2 एज वेल. यस, ये तुम लोग AS के अंदर पढ़ोगे. अभी हमने सिर्फ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ना, CO2 ट्रांसपोर्ट तुम लोग बोलोगे AS लेवल में पढ़ोगे, बोहर शिप वगैरह. खैर, अच्छा अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं किस चीज की, अडेप्टेशंस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स. कि भाई अगर रेड ब्लड सेल्स अपना काम कैरिंग आउट ट्रांसपोर्ट, how are they actually adapted for this oxygen, for this transport? सबसे पहले as you guys told me कि सर हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होता है ना, उनका जो शेप होता है वो बाइकॉनकेव होता है. So they're biconcave in shape. Have you guys ever had that candy, Fenty, like orange है ये candy, candy नहीं Fenty. राइट, तो इस तरीके से फैंटी का शेप होता है ना, रेड ब्लड सेल्स का एग्जैक्टली वैसे शेप होता है, राइट. अंदर से दबा हुआ होता है लाइक दिस. यूज अ डिफरेंट कलर फॉर इट. या अंदर से ही डिप्रेस होता है, दोनों तरफ से डिप्रेस होता है. अच्छा इससे फायदा क्या होता है? इसके दो फायदे होते हैं. सबसे द वेरी फर्स्ट थिंग इज that this increases the surface area to volume ratio. Why does it have a biconcave shape? So that it can increase
surface area to volume ratio for absorption. किस चीज की absorption बच्चा लोग? Absorption of gases. All right. कौन सी वाली गैस है? CO2 एंड यस सेंटीलीटर प्रेशर पर। अब कहने का मकसद क्या हुआ? कहने का मकसद क्या हुआ? अगर मैं फॉर एग्जांपल देख इसको देखो, तो हम कहते हैं भाई ये डंबल शेप होता है इस तरीके से, अंदर से ये डिप्रेस होता है। इससे क्या होता है? यू कैन पुट इन मोर मेम्ब्रेन, राइट? यू कैन एक उसके कंपेयर टू इट्स साइज, यू कैन पुट मोर नंबर ऑफ मेम्ब्रेन, उसको अंदर से एक फोल्ड दे सकते हैं। दूसरी चीज अगर हम लोग देखें ना, देखो, अब फॉर एग्जांपल मैंने ये एक पर्टिकुलर कैपिलरी बनाई, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कैपिलरी। अगर रेड ब्लड सेल बाइकॉन्केव नहीं होता ना, तो देयर वाज अ चांस कि भाई ये फंस जाता कैपिलरी के अंदर। लेकिन क्योंकि ये बाइकॉन्केव होता है ना, तो ये क्या कर सकता है? ये स्क्वीज, जैसे कि हमारे पास लेंसेज होते हैं ना, लेंस होते हैं ना हमारे पास, तो लेंस है कॉन्केव, तो हम लोग कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाते हैं। तो अगर हम लोग उनको स्क्वीज करें, तो व्हाट्स गोना हैपन? दे आर गोइंग टू, लेट्स से, दे कैन बिकम बेंट। तो ये रेड ब्लड सेल भी क्या हो सकते हैं? दे कैन ऑल्सो बिकम बेंट। कैसे? इस तरीके से। ये ऊपर से क्या हो जाएंगे? इस तरीके से बेंट हो जाएंगे लाइक दिस, सो दैट इट द पैसेज थ्रू द कैपिलरी में बी इजियर। ऑलराइट। अगर ये फॉर एग्जांपल इफ दे वुड नॉट बी बाई कॉन्केव, अगर बेंट बेंड नहीं हो पाते, दे माइट हैव कॉज्ड अ ब्लॉकेज इन द कैपिलरी। ठीक है। अच्छा, इसकी दूसरी अडेप्टेशन हमारे पास क्या है? कि इट हैज नो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। ये कभी मत लिखिएगा कि इट हैज नो ऑर्गेनल्स। ये कभी मत लिखिएगा क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म तो होता है। ठीक है। इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन, इसके पास सेल मेम्ब्रेन तो है, तो ऑर्गेनल्स तो है। हाँ, कौन से ऑर्गेनल्स नहीं है? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हमने कहा सो मोर स्पेस इज अवेलेबल फॉर हीमोग्लोबिन। मतलब क्या हुआ? ताकि मैं इसके अंदर ज्यादा हीमोग्लोबिन को अकोमोडेट कर सकूं। अब इसकी मिसाल देखो बेटे, इसकी मिसाल देखो। I'll give you a layout of my room. I'll give you a layout of my room. So in my room, I have a dressing table right here. I have my bed right here. I have my study table right here, and